this video, I'm going to talk about some situations that how we can detach ourselves from the wrong people and from the environment which might be harmful for our future and for our personal development. So for that, I have written some points which I am going to discuss one by one. So first number point is, just let's come to the point. Firstly, I just wanna to tell you the importance that why we have to detach ourselves from that wrong people, from the wrong environment to become successful. Because when we detached ourselves from the people, as I've told you in my previous video, we got to know more about ourselves, we got more friendly with ourselves. And it's important to detach ourselves from that people, because this is important nowadays to spare time with ourselves and detach the people. Because if we are just attracting towards the people, we are attracted towards the people, or we try to attract the people towards us, we got captured into a cycle, and from that we cannot even escape it. So this is the important that why we need to detach ourselves from the wrong people and from the wrong environments. So first number point which I am going to discuss today, why we need to detach ourselves, that they control you. आपने कभी सोचा है जब आप मतलब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, या फिर आप कभी भी किसी के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाते हो, तब वो सामने वाला बंदा आपको कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपसे वो नाराज़ है, ये बस इसको मतलब कोई हार्ट पे मत लेना, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपका कोई भी फ्रेंड है, वो आपसे जस्ट नाराज़ है, तो आप उसके रिप्लाई का वेट करोगे, उसके फ़ोन कॉल का वेट करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे कि हाँ वो बंदा क्या सोच रहा होगा, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे मुझे उसकी भी गलती है, उसे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. देयर आर सो मैनी थॉट्स इन आवर माइंड. Within just a couple of seconds, our mind is full of the thoughts, full of the negative thoughts, and full of the mess. When we are just thinking about the people in the front of us, the people who might have hurt you, or might we have hurt the people, in this condition we are just totally powerless about yourself. You are just totally powerless about yourself. You are powerless with your emotions. You have no control about yourself. You have no control over your emotions. Your only motive is just to make the people happy. And the second number point is why we need to detach ourselves, that is ego. Let me give you example first for your better understanding. For example, a newborn baby है कोई भी, उसको मतलब छोटा सा बच्चा है, एक तो उसको रोना आता है और एक उसको हंसना आता है. उसको ये नहीं पता कि ये वाला पीपल मुझसे बेटर है, इसके पास मुझसे ज़्यादा चीज़ें हैं, ये मुझे ज़्यादा प्यार करता है, कम प्यार करता है, इसके पास मुझसे कम चीज़ें हैं, इसकी लग्जरीज लाइफ है, एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट. उसको ये नहीं पता होता, जो भी उसको हंसाता है, खिलाता है, वो बस उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, बट उसमें कोई ईगो नहीं होती. बस या तो वो बच्चा अगर कोई पसंद आया तो हंस देगा, वरना रो देगा. ये दो चीज़ें करते हैं. बट व्हेन वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, स्टार्ट कमिंग इनटू द कॉन्टेक्ट विद द न्यू पीपल, we get enroll ourselves into the new environment, we start consuming the stuff, the knowledge the people gives us. and वो knowledge कभी कभी सही भी होती है, बट कभी कभी हर कोई सही नहीं होता. हर एक जो ज्ञान लोग देते हैं वो भी सही नहीं होता. तो जब हम लोगों के कंटेक्ट में आते हैं, हमें पता चलता है कि उसने एक नई गाड़ी ले ली और मेरे पास पुरानी है, तो वो एक ईगो बन जाती है कि मेरी बात है. अगर लड़ाई हो गई तो मैं क्यों मैसेज करूं. वही पहले फ्रेंड वाले एग्जांपल पे ही आओ कि अगर लड़ाई हो गई है तो हम वेट कर रहे हैं कि चलो उसका रिप्लाई आएगा या फिर वो बात करेगा, बट हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम बात करें. ये हमारे बीच में एक ईगो आ जाती है जो हमें मतलब डिटैच तो कर ही देती है. वैसे भी ईगो तो जिस बंदे में आ गई वो डिटैच कर ही देती है. While we are in the ego situation, we got think that the other people is better than us, and we start just attracting toward the people, which is not correct. You have to stop it. If you're just feeling right now, if you're just feeling these things, just you have to stop it. And the third number tip is that everyone has purpose. ये भाई 2023 का ज़माना है, इसमें हर बंदे का एक पर्पज़ है. किसी से कोई अपना नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई और, मतलब हर किसी का कोई ना कोई एक पर्पस होता है. फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, चलो आपने कोई पार्टनरशिप की है, उसके बाद जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपका पर्पस खत्म हो गया ना, उनका आपसे कोई लेना देना, ना उनसे कोई लेना देना. वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक पर्पस था, एंड दैट्स
ऑल। उसके बाद कोई फीलिंग्स नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई अदर कॉन्टेक्ट नहीं, जस्ट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन टूडेज वर्ल्ड everyone have a purpose. It may be in your friendship, in your business, or in your teaching course, and in anything. And even in the student life, everyone has purpose. Everyone has purpose. They became your friend just to देखना चाहते हैं आपकी स्ट्रेटजीज लेने के लिए. जस्ट आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आप कैसे कैसे पढ़ते हो, वो आपकी जो कैसे कैसे वो थिंग्स है जो अपने खुद में ले जा सकें, और उसके बाद जब वो आपके कॉम्पिटिटर बन सके तो आपको कम्पीट कर देंगे. एवरीवन हैज़ पर्पस, इवन इन द स्टूडेंट्स लाइफ, टीचर्स लाइफ, सबकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता ही है. एंड द अदर पॉइंट इज दैट व्हेन दोस टाइप ऑफ द पीपल्स केम योर लाइफ, वी जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ ये गॉड हैज सेंड द एंजल फॉर मी. आपकी कोई बेस्टी है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको लगेगा ये तो एंजल है, ये तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट. एवरीवन हैज़ पर्पस, दे वर जस्ट मीन टू देयर लाइफ, यू आर जस्ट टाइम पास फॉर देम, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. वो है जो फोर्थ नंबर है, वो है फॉल्स फैंटेसाइज. कभी कभी हम किसी आदमी की, किसी की एक फॉल्स इमेजिनेशन बना लेते हैं खुद के माइंड में कि ये बंदा ऐसा कर नहीं सकता. वी क्रिएट द फॉल्स फैंटिनेशन जस्ट टू वी हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पीपल. बट वो फॉल्स फैटिनेशन सिर्फ हमारे माइंड में होती है, सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, बट नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी. We have just a false fantasy about that person. Oh, he cannot do anything wrong, he is not that type of person, he is not that sort of the person. We have the false fantasy in just our head and nothing else. The fantasy is doesn't exist in the real life. We have to understand this fact. बिकॉज जो हमारी फॉल्स फैंटेसी है वो हमें मतलब ना तो हमें खुद से डिटैच कर देती है, हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसी नहीं हो सकती. ये चीज़ें हमारे माइंड में हम एक डेवलप कर लेते हैं विजुअलाइज इमेज कि नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, बट वो एक फॉल्स फैंटेसी है. टाइम के साथ साथ हमें पता चल जाता है. फिफ्थ नंबर में टिप देनी चाहूँगी आगे, गेट अ लाइफ. गेट अ लाइफ मीन्स हम सब अपनी लाइफ जी तो रहे हैं. गेट अ लाइफ का मतलब क्या है कि गेट अ लाइफ मीन्स खुद की लाइफ में रहो, खुद की लाइफ में मतलब हैप्पी रहो. आप जितना हो सके आप उतना खुद से हैप्पी रहने की कोशिश करो. नॉट हैप्पी इफ यू आर in any case, if you are not happy with your life, just try to develop your interest, try to be passionate about your skills, because life is yours. You have to live it anyway, you have to live it somehow. So just develop your interest in your life. Stop comparing yourself with the other people that they might be better than you. No, they also think that you are better than them. If you are just thinking about the other people or what they say or what the people think about me, if I have done this, just don't care about the people, because in this stage you just literally come into the state of the depression, and that people can literally make you depressed, and those all things can literally make you are enough to make you depressed. एंड लास्ट नंबर एंड द बोनस टिप इज जस्ट टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि जो भी हमारी लाइफ में जो भी हमें मिला है, जस्ट थैंक गॉड आई एम हैप्पी विद दिस. मिला मैं हैप्पी हूँ. अगर मुझे कुछ नहीं भी मिला तो भी मैं हैप्पी हूँ. क्या पता किसी को ज़्यादा ज़रूरत थी उसको मिल गया. आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई एनवायरमेंट, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, आई एम हैप्पी विद माई सराउंडिंग्स, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ स्टाइल. You have to be happy in your own way. You have not be, just don't show off, just don't show that you are happy just for the sake of the people that what they think about us. You can only be happy in the real way when you accepted yourself as the way you are. The self acceptance is the real happiness in the life. एंड उसके लिए मैंने एक शायरी देखी थी एक मैम की, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और वो मैं शायरी अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो कैन आई. मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद. अगर आज कुछ खो गया है, किसी के नसीब में लिखा था शायद. जब ये बार बार सोच के हताश हो जाते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि अगर इससे बुरा हो जाता तो क्या होता. मतलब क्या था कि अगर आपकी लाइफ में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको लगता है आपका कुछ खो गया, सो बी हैप्पी. क्या पता किसी को आपसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद, क्या पता कोई आपसे ज़्यादा नीडी हो उस हैप्पीनेस के लिए, वो चीज़ जो आप चाहते हो. So thank you. This is all for this video. Bye bye.